Today we will start exercise 11 of chapter midpoint theorem for class 9th for ICSE from ML Agarwal. First sum, this one. PDF बच्चे मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया था. In figure first given below, D, E, F are the midpoints of side BC, CA and AB respectively of triangle ABC. If AB 6, BC 4.8, CA 5.6, find the perimeter of this and triangle this. First of all, I can draw the figure. D, E, F are the midpoints. D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC, and F is the midpoint of AB. These are the midpoints. Sayona, Yes, sir. good evening. Good afternoon. Good तो afternoon, बिना sir. बताए कहाँ चली गई थी? Yes, sir. वो बिना बताए कहाँ चली गई थी? हमारा मन ही नहीं लगा तेरे बिना. सृष्टि सर बोर हो वो गई कहती मेरे रिलेटिव के साइना को घर देखना गई है. थी। साइन क्या? सर मैं वो मेरे रिलेटिव के घर गई थी। रिलेटिव ने नंबर दिला देने हैं एग्जाम में हैं? फोन तो था ना तेरे पास. सर वो मैं दूसरा फोन लेकर गई थी। तो ऐसा ना किया करो. अब तेरे को कुछ नहीं समझ आएगा क्योंकि कल हमने मिड पॉइंट थ्योरम्स की थी, उसका प्रूफ किया था. तो आज आपका सारा लेक्चर बेकार हो जाएगा. चलो फिर भी इसके बाद वीडियोस को अच्छी तरह देख के कर लेना कंप्लीट. This is here given. What is given? D, E, F are the midpoints. Means BD is equal to DC. CE is equal to AE. AF is equal to BF. These three things are given. और क्या given है? AB 6 given है. AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 4.8 centimeter, and CA becomes 5.6 centimeter. To find, we have to find the perimeter of trapezium FBCE, and second part P for perimeter here, perimeter of triangle DEF. These two things we have to find. इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, क्योंकि हमने फाइंड करना है ना पैरीमीटर. तो दैट मीन्स ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, ये गिवन ही है हमें, ये ऑलरेडी ज्वाइंट है. तो प्रूफ देखो, टोटल ए बी 6 है, तो ये 3 हो जाएगा. ए एफ भी 3 हो जाएगा, बी एफ भी 3 हो जाएगा. यस और नो? यस. श्यान ने बोला था कि हाँ ने बोला था? क्या बोला था? नो वन. हाँ जी. प्रूफ हियर, this is 3 because total AB is given 6, BC is 4.8, midpoint is this one. Then what is the length of BD Smithy? BD की लेंथ कितनी आ जाएगी? सर 2.4। 2.4. Egna, DC is? Sir, 2.4. AC is 5.6. Prishti, what is the length of AE? उसका हाँ 22.8. yes, this is also 2.8. ओके, यहाँ तक आ गया बच्चे हमारे पास?
we have to find the perimeter of FBCE. FBCE मतलब perimeter. Perimeter is the total length of outer boundary. Perimeter में FB plus BC plus CE plus FE आएगा. ये आएगा ना बच्चे? FE की लेंथ नहीं है हमारे पास. अब इन ट्राइंगल देखो, अभी मैं मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करूंगा. इन ट्राइंगल ABC, AF is equal to BF and A is equal to CC. This is given. ये हमें given. सृष्टि, अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम. हमने इसको कंडीशन बता दी कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है. तो अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम. यस सृष्टि, क्या लिखेंगे बच्चे हम? सृष्टि, आपकी वॉइस नहीं आ रही बच्चे. आप घबराते क्यों इतना बोलने से? नो, एक ना. Sir, by midpoint theorem, FE is parallel and is equal to half of BC. FE parallel to BC and FE is half of BC. यहाँ रीजन मिड पॉइंट थ्योरम. अब पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे FE की लेंथ चाहिए. FE half, what is BC? That is 4.8. कट किया, we get 2.4. EF we get 2.4 centimeter. So now perimeter of trapezium FBCE is FB plus BC plus CE plus EF. इन चारों साइड का सम आ गया. The length of FB is 3. The length of BC is 4.8. Length of CE is 2.8. Length of EF is, that we have already find, that is 2.4. Addition तो सबको आता है. 4, 8, 12, 8, 20, 2 carry, 4, 2, 6, 4, 10, 3, 30. 13 is our answer. समझ गए बच्चे? फर्स्ट पार्ट का आंसर पता चल गया बच्चे. इसका पेरीमीटर इस फिगर का कैसे फाइंड हुआ? इज इट ओके? नाउ Prishti, how we can find FD? FD की लेंथ कैसे फाइंड करें हम? बताइए. हाँ जी, ये फिगर मैंने अलग से बना ली बेटा. इस फिगर में AF FB के इक्वल है, BD CD के इक्वल है. तो पृष्टि, how we can find FD? Now in triangle ABC again, AF is equal to FB, BD is equal to CD. Then apply midpoint theorem. क्या आएगा पृष्टि? FD is parallel to AC and FD is half of AC. Very good. That is the midpoint theorem. सृष्टि समझ आ गया बच्चे? सृष्टि, Yes, sir. FD, we get half. The length of AC is 5.6 is given. We get 2.8. FD is 2.8 centimeter. Same way, now
DE. E is the midpoint of AC. D is the midpoint of BC. Now, AE is equal to EC and BD is equal to CD. तो यहां से यस सायोना बता सकते हो ईडी किसके इक्वल होगा? Yes, sir. यस बताइए बच्चे. Sir, half into 5.6. नहीं बच्चे, ईडी इसके अपोजिट थर्ड साइड, मतलब देखो बीसी का मिड पॉइंट हो गया, एसी का मिड पॉइंट हो गया, थर्ड साइड एबी, तो ईडी इज पैरेलल टू एबी एंड ईडी इज हाफ ऑफ एबी. सेम रीजन, मिड पॉइंट थ्योरम. By using midpoint theorem, so ED we get half and AB we is given 5.6 ही given था. AB 6 था, not 5.6, 6, 3. तो ED की लेंथ कितनी आ गई? 3 आ गई. FE हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये रहा 2.4. FD this is 2.8 and ED this one that is 3. तो इसका पेरीमीटर आ गया बच्चे, पेरीमीटर ऑफ EFD. सृष्टि, पेरीमीटर ऑफ EFD इज? Perimeter of EFD हाँ, इज इक्वल टू FD प्लस DE प्लस तीसरी साइड कौन सी आएगी बच्चे? FE FE. FD 2.8 हमने फाइंड किया अभी, ये रहा. DE अभी फाइंड किया. ED और DE दैट इज द सेम थिंग 3. FE हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था, दैट इज 2.4. एड ऑल दीज 3, 8 4 12, 1 कैरी, 3 3 6 through 8. 8.2 centimeter is the perimeter. This is our second part answer. मतलब सिंपली मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया है सारे पार्ट. ठीक है, समझ आ गया बच्चे? हाँ जी, एयान जी कैसे हो? एयान ठीक है? तू है कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ओपन योर वीडियो. सबने किया हुआ है ना? Yes, sir. Yes. Now we'll reach on B part. इसका बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का B पार्ट हमें क्या की है? इन द फिगर, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं बच्चे, जो फिगर हमें दिया हुआ है. In figure 2, given below D and E are the midpoint. D midpoint का मतलब AD is equal to BD. E is the midpoint of AC, that means AE is equal to EC. Are the midpoint of AB and AC respectively. BC is given 5.6. Angle B is 72. Angle B, sorry, BC, angle B is 72. To find, गिवन में लिख लोगे बेटा, AD is, चलो मैं लिख ही देता हूं. गिवन AD is equal to BD, AE is equal to EC, BC की लेंथ गिवन है हमें 5.6 सेंटीमीटर एंड एंगल B गिवन है 72. ये 4 थिंग्स गिवन है हमें. टू फाइंड, कंप्यूट और टू फाइंड दैट इज द सेम थिंग. फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ DE फाइंड करना है हमें. सेकेंड पार्ट एंगल ADE फाइंड करना है. तो प्रूफ DE, yes Smiti, how we can find DE? Yes, sir. Sir, DE
is parallel to BC and is half of BC. So it सीधा will लिख be देंगे, no sir. Sir, कैसे लिखेंगे? देखो प्रेजेंटेशन इज मस्ट, आपने एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो मुझे चाहिए यहाँ पे। अभी बता दोगे तो हमेशा लिखोगे, अभी नहीं बताओगे तो फिर हमेशा गलती Sir. करोगे। Sir, DE is parallel to BC. नहीं नहीं, हम पहले उसको कंडीशन बताएंगे, हम मिड पॉइंट थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है स्मृति? जहां टू मिड पॉइंट गिवन हो। तो हमने सबसे पहले ये बताना है उस एग्जाम में या अपनी आंसर शीट में कि कौन सी ट्रायंगल के अंदर टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रही है। इस ट्रायंगल में बच्चे अब देख लो, इसके बाद नहीं मैं बताऊंगा, पूछूंगा और ना बताया तो मैं गाजियाबाद आ जाऊंगा। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज इक्वल टू बीडी, डी मिड पॉइंट, ये क्या शो कर रहा है एडी इज इक्वल टू बीडी कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, E is the midpoint of AC, that is AE is equal to EC. This is given. हमने दोनों कंडीशंस बता दी कि ये जो लाइन है इसके और इसके मिड पॉइंट पे ज्वाइन करिए। Therefore, अब वो चीज आएगी बच्चे जो आपने बोली थी, क्या आएगा स्मृति? Sir, DE is parallel to BC. Yes, and D is parallel. Sorry, DE is half of BC. very good. साथ में रीजन मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसे प्रॉपर लिखेंगे हम। इसकी अभी जरूरत नहीं है। DE half the length of BC is given 5.6, correct? We get the first answer. DE की लेंथ आ गई 2.8 सेंटीमीटर। ये लाइन बच्चे हम पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं, ये रहा, मैंने एरो लगा दिया। एंगल ADE, ये एंगल किस एंगल की इक्वल होगा? यस बताइए बच्चे। स्मृति, ये एंगल किस एंगल की इक्वल होगा? Angle B. रीजन? Because the corresponding angles. बिल्कुल सही है। सॉरी क्यों बोला था? कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप पे? Sir, कब बोला सॉरी? और क्या बोला था? सॉरी आवाज नहीं आई? नहीं, मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक ना लगा आई थी ना आवाज सॉरी की। सर मुझे लगा कि जैसे आपने पिछले चैप्टर में बताया था ना कि ABC जब दो एंगल्स बन रहे हैं किसी एंगल पे, तो उसमें किसी एंगल पे नहीं बन रही, अलग अलग पॉइंट्स पे बन रहे हैं। यस सर, मुझे समझ आ गया, बाद में आता थोड़ा। हाँ जी, बस हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल ना। सृष्टि पता है ना बच्चे आपको? सृष्टि अपनी एनर्जी बचा के कहाँ जाएगी तुम? है सृष्टि, अपनी एनर्जी सेव करके कहाँ जाएगी? बोला करो, ठीक है? उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जितना बोलोगे बच्चे। अब तो तीसरा दिन है, अब तो खुल जाना चाहिए, अब शर्म नहीं रहनी चाहिए। फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट या सेकंड डे ही। देखो पृष्टि भी बोलने लगी गई है ना पृष्टि? Yes, sir. ओके, A, B, C, here D, here F, here E. गिवन क्या है? गिवन बिलो D एंड E आर द मिड पॉइंट। D इसका मिड पॉइंट है तो मैंने AD और BD पे कट लगा दिए, दैट मींस AD इज इक्वल टू BD। E is the midpoint of BC, this is equal to this, the BE is equal to EC। DF parallel and DF parallel to BC, ये लाइन इसके पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, मैंने एरो सिंबल लगा दिया। प्रूव दैट गिवन AD is equal to DB, AD is equal to DB, BE is equal to EC, और क्या गिवन है? DF parallel to BC। These three things are given to prove
जो चीज हमें शो करनी है, वी हैव टू प्रूव DBEF is a parallelogram. DBEF is a parallelogram. This is. And second, to find करना है AC. If AF is given, AF हमें 2.6 given है, यहाँ पे given में लिख दो AF is 2.6 and we have to find AC. वो तो सिंपल है. सेकेंड पार्ट इज इजी वन. फर्स्ट प्रूफ करना है जो, वो देखो प्रूफ. चलो श्यान Yes, sir. बच्चे, पैरेललोग्राम की सबसे पहली बोलो प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? sir, all parallel opposite sides are equal to each other. सेकेंड, Opposite parallel sides. अपोजिट पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. ये क्या रीजन हुआ? प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी चाहे सेकंड ले लो उसको, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हैं तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है. ठीक है बच्चे? Yes, sir. दैट इज अ पैरेललोग्राम. यहां पे ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल गिवन है. अब यहां पे आ जाओ. दिस इज नॉट द मिड पॉइंट. हाँ, ये साइड मैं फिगर ना अलग से एक छोटी सी बना रहा हूं जिसमें मैंने ये अभी एक्सप्लेन करूंगा, वो चीज यूज होगी. ABCDF. डी इसका मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है. इन ट्राइंगल ABC, AD is equal to BD and DF parallel to BC. These two things are given. तो श्यान, यहाँ Yes, sir. पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी थ्योरम लगेगी? Sir, the midpoint theorem, sir. मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट बोलना. Sir, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel ये to. F मिड पॉइंट गिवन है हमें. ये लाइन सेगमेंट हो गई ना. दिस इज अ लाइन सेगमेंट बच्चे. Yes, sir. बट F इज नॉट द मिड पॉइंट. तो ये कैसे हो गया? मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लग जाएगी? Sir, converse होगा शायद sir. कन्वर्स की स्टेटमेंट Sir, the line segment drawn. ना, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. तो देखो Yes, ये चीज रीजन, एक साइड का मिड पॉइंट था, ये रीजन आ गया. दूसरी के पैरेलल थी, ये रीजन आ गया. तीसरी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. देयरफॉर AF is equal to FC. रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. AF is equal to FC आ गया. ये हमें प्रूव किया हमने. अब आ जाओ यहां पे, क्या इस साइड, इस ट्रायंगल में आ जाओ. ये लाइन जो मैंने डबल कर दी, डार्क कर दी, सायना, ये किसको ज्वाइन कर रही है? अब Yes, sir. FE लाइन किसको ज्वाइन कर रही है? Sir, टू साइड्स के AC. मिड पॉइंट को, टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है. अब कौन सी थ्योरम लगेगी? अब लगेगी मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, समझे? नाउ AF is equal to FC and BE is equal to EC. So therefore FE parallel to AB, पैरेलल की मुझे पैरेलल की जरूरत है. FE is parallel to AB and FE is half of AB. यहां रीजन आएगा मिड पॉइंट थ्योरम. दोनों का डिफरेंस पता चल गया ना? इस क्वेश्चन के अंदर नहीं पता चला समिति? देखो यहां पे कन्वर्स लग रहा है, यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है. ये लाइन सेगमेंट एक साइड AB के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है समिति, दूसरी के पैरेलल है, BC के पैरेलल थी.
तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो ये आया हमारे पास रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। अब इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, सिर्फ ये लाइन देखो। ये मैं इसके इक्वल प्रूव कर चुका हूं, मिड पॉइंट मतलब एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, हमें गिवन है, गिवन है। तो ये लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है? मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। थर्ड साइड कौन सी बच गई? ए बी। तो एफ ई क्या होगा? ए बी के पैरेलल, एंड एफ ई इज हाफ ऑफ ए बी। सेकंड पॉइंट तो समझ आ गया, मिड पॉइंट थ्योरम वाला समझ आ कन्वर्स गया। में बच्चे आपकी स्टेटमेंट देखो ना, स्टेटमेंट क्या है बच्चे? सर मुझे बस ये जानना है कि जब तक क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि ये मिड पॉइंट है क्वेश्चन का, तब तक आप उसे मतलब तब यूज उसमें नहीं कर कॉन्वर्स सकते। और मिड पॉइंट ही लगेगा। नहीं, वो कंडीशन देखनी पड़ेगी ना बेटा। कंडीशन क्या है? जब दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो मिड पॉइंट लग रही है, जब एक का मिड पॉइंट दूसरी के पैरेलल है तो कन्वर्स लग रहा है। एक का मिड पॉइंट दूसरे के पैरेलल। हाँ, ये देखो, ये लाइन इसका मिड पॉइंट हो गया, इसके पैरेलल है। तीसरी साइड कौन सी बच गई ट्रायंगल एबीसी की? एसी बच गई, उसको बाइसेक्ट करेगा, तब वो कन्वर्स लगा। स्टेटमेंट देखो ना, स्टेटमेंट को समझो। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इज इट ओके? लग गया पता? सर थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, आ जाएगा। अभी मैं पूछूंगा तेरे से, फिर से आना शुरू हो जाएगा। ये आ गया बेटा। अब एफ ई ए बी के पैरेलल है, तो एफ ई इज आल्सो पैरेलल टू डी बी और नॉट? बताओ। पूरी लाइन इस पूरी के पैरेलल है, तो इतना पार्ट भी तो पैरेलल ही होगा। यस और नो? एंड एफ ई, व्हाट इज हाफ ऑफ ए बी? ए बी का हाफ? यस पृष्टि? ए बी का हाफ क्या आएगा पृष्टि? डी बी। मिड पॉइंट था ना डी। कल हमने थ्योरम में भी किया था ये चीज। डी एफ ई बी मैंने अलग से फिगर बनाई, ये साइड इसके इक्वल भी प्रूफ कर दी मैंने। देखो एफ, एफ है ये, एफ ई इक्वल टू डी बी प्रूफ कर दिया। एफ ई पैरेलल टू डी बी। क्या स्टेटमेंट लिखवाई थी कल, याद है दृष्टि? क्या लिखवाया था मैंने? वी नो दैट इफ अ पेयर मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. So therefore, DBEF is a parallelogram. DBEF is a parallelogram. Parallelogram बन गया। सेकंड AC, ये तो सिंपल एक लाइन का ही है। AF हमें गिवन है। यस समिति, AC कितना होगा? सर एसी एसी होगा, एक मिनट। सर 5.2। यस, क्योंकि एफ को मैं इसका मिड पॉइंट प्रूव कर चुका हूँ, तो एफ सी इज ऑल्सो 2.6। तो ज्यादा बेटर है कि हम ए सी इज 2 टाइम ए एफ लिख दें सीधा। तो ट्वाइस ऑफ 2.6 दैट इज 5.2 सेंटीमीटर। दैट इज अवर आंसर। वो हमारा आंसर आ गया। समझ आया बच्चे? ये सृष्टि समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. सृष्टि, So, सृष्टि की तो मम्मी ने उसको बोला है कि तूने बिल्कुल नहीं बोलना क्लास में, है ना सृष्टि? मम्मा ने इंस्ट्रक्शंस दी है ना कि क्लास में बोलना नहीं है तूने, कि तूने कसम खाई हुई है कि मैंने बोलना नहीं है।
बोलो बच्चे, सर बोल तो रही हूँ। अभी बोली है। चलो, नाउ वी विल रीच ऑन सेकंड सम, रीच ऑन सेकंड क्वेश्चन। Prove that triangle, prove that the four triangles formed by joining in pairs of midpoint of the sides of a triangle are congruent to each other. Prove that four triangles formed by joining in pairs of midpoint of sides of a triangle are congruent to each other. सिंपल है। Midpoints are given. C, E, F are respectively the midpoints. D BC का midpoint है, E AC का midpoint है, F AB का midpoint है. These are given. इनको ज्वाइन करने पे टोटल ट्रायंगल्स कितनी दिख रही हैं यहाँ पे आपको? 1 2 3 4. इन चारों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव ऑल दीज फोर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. तो गिवन AF is equal to BF, this is given. BD is equal to CD, सेकंड साइड का मिड पॉइंट गिवन है. थर्ड AE is equal to EC, ये गिवन है. टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव दीज फोर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. तो इसमें बच्चे थोड़ा सा मैं ऑर्डर अपने आप लिख रहा हूं. DEF कॉन्ग्रुएंट टू ए, एक मिनट, ये दोनों करनी है ना, इंग्लिश के इक्वल होगा DA. ए फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, AFE के कॉन्ग्रुएंट टू ये ट्रायंगल बच्चे. F फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, FBD. इसमें बच्चे आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू, ये तीनों भी कॉन्ग्रुएंट. और फोर्थ वन E पोजीशन पे आएगा, E था, ADC. मैंने यहाँ पे ऑर्डर में लिखा है क्योंकि मेरे को पता था. अभी मैं इसको समझाऊंगा कि इसको ऐसे कैसे ऑर्डर में लिखना है. प्रूफ पिछले सम में बच्चे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था ना. लास्ट सम में हमने इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, सेम टू सेम मेथड से. नाउ अगेन वी कैन प्रूव इट एज अ पैरेललोग्राम. कैसे? इन ट्राइंगल ABC, AF is equal to BF and AE is equal to EC. This is given. So Srishti, apply midpoint theorem. AF is equals to BF and ये इसके इक्वल, तो अप्लाई मिडपॉइंट थ्योरम. FE is half of BC and it is और? parallel to BC. बिल्कुल सही है, टोटली करेक्ट. रीजन मिडपॉइंट थ्योरम. FE पैरेलल टू BC, FE हाफ ऑफ BC. अब FE BC के पैरेलल है बच्चे, तो इतना पार्ट भी तो पैरेलल होगा. और FE इज पैरेलल टू BD आल्सो. ठीक है, यस और नो? एंड FE व्हाट इज हाफ ऑफ BC? BC का हाफ क्या बनेगा सृष्टि? व्हाट इज द हाफ ऑफ BC? BD. यस, BD. अब इतनी साइड, अब इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ. ये साइड इसके पैरेलल भी है, इक्वल भी है. तो व्हाट इज दिस?
पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिखा था हमने? वी नो दैट, मैं फिर से लिख देता हूं इस सम में, इफ अ पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, equal as well as parallel and parallel, जैसे मर्जी लिख लो, then quadrilateral is also called parallelogram. Therefore, BDEF is a parallelogram. यहां तक हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया तो बच्चे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। पृष्ठी, कौन से एंगल है ये? Alternate interior angle. 3 is equal to 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। FD क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई ASA से, यस और नो? ठीक है स्मिति? नाउ इन ट्रायंगल्स DEF एंड D एंगल इसके F के इक्वल है, F लिखूंगा मैं, DE किसके इक्वल? B के, FBD, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एंगल 3 इस ट्रायंगल के एंगल 4 के इक्वल, इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल। देखो 3 4 के इक्वल, 1 2 के इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं मैं। एंड FD कॉमन, इन दोनों का रीजन टुगेदर लिखेंगे हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? DEF congruent to triangle FBD. Reason is ASA rule. By which rule the triangles are congruent? ASA. अब अंग्रेज चले गए, बट एक वर्ड छोड़ गए, सिमिलरली। उन्होंने एक रेल की पटरी बना के दिखा दी और बोल दिया सिमिलरली ऐसे बनाते रहो। इंडिया आज तक बना रहा है। पहले कच्चे घर होते थे, उन्होंने एक पक्का घर बना के दिखा दिया और बोल दिया कि ऐसे अब सिमिलरली बनाते रहो। तो सेम यहां पे हमने एक इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव करें, फिर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करें, तो उससे अच्छा है ये सिंबल होता है सिमिलरली का, पैरेलल का सिंबल डाल के LY, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरली। ये किसका सिंबल है? सिमिलरली का। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल, मतलब ये पैरेललोग्राम प्रूव करके ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करूंगा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। DEF congruent to EDC. सेकेंड, आल्सो अगर मैं बच्चे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करूं, जो मैंने वाइब्रेशन पे लगा दिया, दिस इज आल्सो बी अ पैरेललोग्राम। उसी मेथड से ये लाइन इसके पैरेलल, इसके हाफ के इक्वल, फिर ये इतना पैरेलल इतना इक्वल, तो ये भी पैरेललोग्राम बन गया। फिर उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करूं, तो वो करने की बजाय मैं ये सेम सिमिलरली वर्ड लिखूंगा, ट्रायंगल DEF is also congruent to AFE. Third, from equations first and second and third, from equations, क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने में हमें इतना टाइम लगा, इतना हमने लिखा यहां से लेके यहां तक, सेकंड के लिए भी इतना लिखे, फिर थर्ड के लिए भी इतना लिखे, फिर तो एग्जाम में हम यही लिखते रह जाएंगे, आधे घंटे में हमारा एक सम ही होगा। तो इससे अच्छा हम क्या लिखेंगे, क्योंकि सेम मेथड, उसी मेथड जैसे ये प्रूफ किया ना, उसी मेथड से हमको इसको प्रूव करना है। तो हम ऐसे एक वर्ड लिख सकते हैं सिमिलरली। सिमिलरली सिंबल पता लग गया, पैरेलल का सिंबल डाल के LY, दिस इज अ सिंबल ऑफ सिमिलरली। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ट्रायंगल DEF congruent to triangle FBD, congruent to triangle
EDC congruent to triangle AFC। हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, चारों ट्रायंगल। देखो कितना इजी हो गया, एक पेयर हमने प्रूफ किया, बाकी पेयर्स हमने सिमिलरली लिख दिए। नो नीड टू प्रूव दैट, हम एग्जाम में हमने ऐसे ही लिख के आना है। समझ गए? नाउ we'll reach on question number 3rd। DEF are the midpoint of AB, BC, and CA respectively of isosceles triangle ABC. Prove that DEF is also isosceles. ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब हमें सबसे पहले क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ AB। D AB का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट है, F AC का मिड पॉइंट है। दैट मीन्स AD हमें BD के इक्वल गिवन है, BE EC के इक्वल गिवन है, एंड F AF CF के इक्वल गिवन है। These three things are given. To prove, we have to prove triangle DEF. Triangle DEF is an isosceles triangle. ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ किससे पूछें? एक ना, Yes, sir. in triangle ABC, AD is equal to BD and AF is equal to FC. This is given. रीजन आएगा साथ में given. Apply midpoint theorem. So by midpoint theorem, DF is parallel to BC and equal to half of BC. किसी को डाउट हो बेटा इसमें? बोलो, सबको समझ आ गया? दृष्टि आगे बेटा। श्यान, Yes, sir. यान, यान कहाँ गया? भाग गया? पता नहीं कहाँ चला गया। DF is half of BC. Take it as equation number 1. Same this side, जहां मैंने डॉट लगा दिया। Now AD is equal to DB and BE is equal to EC. Shan, apply midpoint theorem. Sir, BC. बोलो बच्चे। Sir, DF AB और AC का मतलब नहीं, AB और AC का मिड पॉइंट DF है। बच्चे मैंने क्या लिखा है? AD is equal to DB, BE is equal to EC। तो कौन सी लाइन सेगमेंट हुई? सर DF। हाँ, क्यों DF? F कहाँ लिया मैंने? ये दो पॉइंट थे। सर AD BC। is equal to DB, that means D is the midpoint of AB. B is equal to EC, that is E is the midpoint of BC. ये लाइन सेगमेंट हुई ना बेटा? Yes, sir. तो DE is parallel to which one? Sir AC। हाँ, ये लाइन सेगमेंट इसके और इसके मिड पॉइंट AB एंड BC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो थर्ड साइड AC इसके पैरेलल होगी एंड DE इज हाफ ऑफ AC। टेक इट एज सेकंड। सेम रीजन, मिड पॉइंट थ्योरम। अब तीसरी साइड पे आ जाओ, ये वाली साइड जिसमें मैंने वाइब्रेशन लगा दी। यस पृष्टि, ये लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है?
बोलो बच्चे, पृष्टि। line AC and BC. AC एंड BC के मिड पॉइंट्स को हम्म। मैंने आप, ठीक है। तो ये लाइन क्या Yes. होगी, किसके पैरेलल और किसके हाफ की इक्वल होगी ये वाली? Sir, FE is half of AB and parallel to AB. And वेरी गुड। FE is parallel to AB and FE is half of AB. Third, same reason. Now, AB is equal to AC is given. AB is equal to AC. This is given. Take it as fourth equation. First की हमें जरूरत नहीं है. Second, third, and fourth. From equations second, third, and fourth. और पैरेलल की भी जरूरत नहीं है. ये जो तीनों पैरेलल थे ना, इसकी भी जरूरत नहीं है. Only this one जो बॉक्स में कर दिया. Only this one जो बॉक्स में कर दिया. Only this one. इन तीनों कंडीशंस को देखो, तीनों बॉक्सेस को देखो. बॉक्स दिख रहे हैं ना तीनों? On the three boxes. From here, Smriti, what we get? इन तीन कंडीशंस को, तीन इक्वेशंस को जो बॉक्सेस में बंद हैं, इन तीनों को देखो और मुझे बताओ क्या आएगा हमारे पास इस चीज से. मैं पता नहीं। ये पता है क्या है? पता है? सर भगवान ने एक खोपड़ी दी है, खोपड़ी के अंदर दिमाग दिया है, उसका यूज करो. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये क्या है? सर AC, ये क्या है? AB, ये क्या है? AB और AC। इक्वल है ना? यस सर। उनके हाफ भी इक्वल होंगे. अच्छा ओके सर, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ मतलब गया। ये चीज इस Yes. चीज के इक्वल आ गई बेटा. यस सर। ये भी AC के इक्वल हमें गिवन है, तो उनके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे ना बेटा. यस तो सर। DE क्या आ जाएगा? FE की. मतलब हमने लिखना क्या है? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ, DE इज इक्वल टू FE. हो गया प्रूफ. देयरफॉर ट्रायंगल DEF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. हो गया. समझ आया बच्चे ये? नाउ we'll reach on question number 4. The diagonal AC and BD of parallelogram ABC. First of all, draw a parallelogram. ABCD. हमने parallelogram draw कर लिया. Diagonal AC and BD. AC and B. Intersect each other at O. O पे intersect कर. P is the midpoint of AD. P AD का midpoint है. Prove that. मतलब सबसे पहले given in parallelogram ABCD. AP is equal to DP. AP हमें DP के इक्वल गिवन है और कुछ नहीं गिवन. टू प्रूव. फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है PO, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. PO पैरेलल टू AB. सेकंड पार्ट, PO इज हाफ ऑफ CD. बहुत इजी है. पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. पता है सबको? सिंस diagonals of parallelogram bisects each other, therefore DO is equal to OB. बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स. मतलब ये जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो BD को भी बाइसेक्ट करेगा, AC को भी. AC को हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ BD की चाहिए थी. तो DO is equal to OB. नाउ
in triangle DAB, DP is equal to PA and DO is equal to OB. ये हमें गिवन था, ये हमने प्रूव कर दिया. यस सृष्टि, अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम. PO will be half of AB and हाँ. PO will be parallel to AB. रीजन Midpoint theorem. वेरी गुड. संति का असर हो रहा है मेरे साथ रह के, पढ़ना शुरू कर दिया है ना सृष्टि ने. यस बिल्कुल सही है बच्चे. अब समिति, पहला पार्ट हो गया हमारा प्रूफ. ये रहा देखो, हो गया ना बॉक्सेस. पहला पार्ट ये प्रूफ करना था. यस सर. बट सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम आ गई. यहां CD है, यहां AB है. मैं AB को CD लिख दूं? लिख Yes, सकता हूं AB को CD? यस सर. क्यों? सर क्योंकि दे आर इक्वल. Why? मतलब Reason? Opposite sides of parallelogram are equal. ओके सर. Or opposite sides of parallelogram are equal. That's why. तो हो गया, मतलब AB को हम CD लिख सकते हैं. AB और CD आपस में इक्वल होंगे ना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं. ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट सम, फिफ्थ वन. फिफ्थ वन इज द इंपॉर्टेंट वन. फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट सम है. एक फिगर दी हुई है हमें, है इजी, टफ नहीं है. A B C D, P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का, R CD का एंड S AD का. इन सबको ज्वाइन किया हुआ है. AC को भी ज्वाइन किया हुआ है. मतलब गिवन आप अपने आप लिख लोगे. AP इज इक्वल टू PB, BQ इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू AD और DR एंड DS इज इक्वल टू AS. देखो सिंगल कट वाली लाइन की इक्वल, BQ CQ के CR, DR के DS ऐसे. ये चारों गिवन है. टू प्रूव हमें 3 पार्ट प्रूव करने. फर्स्ट पार्ट, SR इज पैरेलल टू AC. SR इज पैरेलल टू AC प्रूव करना है. एंड SR is half of AC. Second part, PQ is equal to SR prove करना है. Third part, PQRS is a parallelogram. Proof. एक ना, Yes, पहला sir. पार्ट कैसे प्रूव करेंगे? Sir, consider triangle DAC. So in triangle DAC, DS is equal to SA given, And and DR is equal to RC. very good. This is given. तो हो गया फर्स्ट पार्ट. देखो ये लाइन सेगमेंट जो मैंने डबल कर दी, किसको ज्वाइन कर रही है? AD के मिड पॉइंट एंड DC के मिड. DA एंड DC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. तो ये लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल और हाफ पीस चलेगी. तो SR is parallel to AC and SR is half of it. Take it as equation number 1, midpoint. Prishti, इस ट्रायंगल में जो मैंने डार्क कर दी, Yes. इन ट्रायंगल BAC क्या लिखे हम?
AP is equal to AP PB and BQ is equal to CQ. given. Then apply midpoint theorem. PQ is half of AC and PQ is parallel to AC. Yes, बिल्कुल सही. Same reason, midpoint theorem. Prishti, from equation first and second क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है ना बेटा आपको, ये वाली. सेकंड इक्वेशन ये है. इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी? PQ is equals to CR or SR. एंड इसको भी देखना है. And it is also parallel to each other. सो मैं और तू पैरेलल हैं बैठे. SR is parallel to PQ. यस, बिल्कुल सही है. ये चीज, ये था सेकंड पार्ट, ये आ गया. पर इसकी भी मुझे जरूरत है थर्ड पार्ट के लिए. ये साइड देखो, SR PQ के इक्वल भी आ गया बेटा. SR PQ के पैरेलल भी आ गया. तो वही थ्योरम में भी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, याद है किसी को? एक पेयर अपोजिट साइड का, इस क्वाड्रिलेटरल का, PQRS का इक्वल भी है, पैरेलल भी है, सेम पेयर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम. वो स्टेटमेंट क्या थी स्मिति? वी नो दैट इफ स्मिति, यस सर. बोलिए बच्चे. सिंपल है, देख के बोलना है. ये देखो एक पेयर है ना, इक्वल भी है, पैरेलल भी है, यही लिखना है हमें स्टेटमेंट में. वी नो दैट इफ अ पेयर मतलब एक पेयर, a pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram. समझ गए? यस सर. अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो ना बेटा, ये आ गया ना, SR जो है इसके इक्वल भी है, इसके पैरेलल भी है. यहां पे हम लाइन लिखेंगे, वी नो दैट इफ अ पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. So therefore PQRS is a parallelogram. इसलिए PQRS क्या बन गया? एक parallelogram बन गया. बस हो गया प्रूफ. और ये चीज काफी सम्स के अंदर यूज होगी. इतना पार्ट हमें काफी सम्स आएंगे जिनके अंदर ये चीज सेम टू सेम प्रूव करनी होगी. ओके, समझ आ गया? पृष्टि, Yes, sir. बच्चे आज तक, कल और आज जो भी मैंने करवाया समझ आया आपको? Yes, sir. पक्का समझ आया है? Yes, sir. एक ना को तो आ ही जाता है. एक ना तो इंटेलिजेंट बच्चा है. समिति, सृष्टि, यस सर. कसम खाई हुई है, मैं मुश्किल से बोलूंगी, है ना? इतनी ऊंची बोला कर, मम्मा को पता चले ये पढ़ रही है, ठीक है? नहीं तो कहेंगे गेम ही खेल रही है ये फोन पे. ओके, शर्मा आ रही है वो, इतना शर्मा रही. तीसरा दिन है, आप तो ओपन हो जाओ. दृष्टि भी देखो बैठी है ना नॉर्मल, ये तो ऐसे, तो भी ऐसे कर लेगी कि हाँ शर्म आ रही है मुझे बैठे बैठे, है ना? सायोना, तेरे को दोनों लेक्चर देखने पड़ेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स, वो लिखना पड़ेगा. और आज का, क्योंकि आज तेरे को आधा पचद्दा समझ आया होगा. तो अपनी नहीं आया. ध्यान Yes, निकालो sir. बच्चे, थोड़ा सा विदाउट देखे करो. नहीं आ रहा मुझे समझो, ठीक है? या वीडियो देख लो. वीडियो का लिंक तो मैं डाल ही Sir. देता हूँ. हाँ जी. सर ये 5th नंबर का फोटो एक बार ग्रुप में भेज दीजिएगा तो. नहीं, मैंने देखी.
अच्छा होता थोड़ा मारना है यार, देख ले फिर से समझ ले। ये ट्रायंगल है, यस सर। ये लाइन इसके और इसके साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइन करी, ये लाइन इसके पैरेलल और हाफ के इक्वल। सेम वे नीचे ट्रायंगल है, ये लाइन इसके पैरेलल एंड हाफ के इक्वल। सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये चीज में देखो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, राइट साइड इक्वल है तो ये पैरेलल होगी, वही चीज लिखा है। उसके बाद ये लाइन कि एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। ओके सर। समझ गए? यस सर। सृष्टि थोड़ा सा इसको समझाना सृष्टि को कि ओपनली बोला कर, ठीक है? तेरी एक अच्छी फ्रेंड है ना वो। हाँ Yes, sir. कोई बात नहीं, हम बैंड बजानी है सबकी। टीचर भी ये सोचें कि हाँ ये हो क्या गया,